Okay, so welcome to our new batch for data science AI/ML. So everyone will get joined within few minutes. Till then, we'll continue with my introduction as well as yours introduction. Okay, so this will be our like very first session, as you know, and I just wanted to be feel comfortable, me as well as you. Like our speed will get matched, and whatever topics I'm going to cover within upcoming 2 months. So those topics will get discussed here in today's session. And you guys tell your introduction, where are you from, and what's your background, like technical, non-technical, whether you're working or whether you're searching for a new job, you're a graduate, fresher, whatever introduction you are having. Okay, so let's start. So first of all, I will give my introduction. I'm Aishwarya, and I'm having 6 years of experience into this data science, machine learning, and AI field. Currently, I'm working as a AI/ML engineer on site in Mumbai. And apart from that, I have 4 years of experience as a data science trainer for few of the institute. So in Rise, I'm working with Rise since last 2 years. Okay, so this is all about me, and I'm from Mumbai. So I would like to know more about you. So first of all, who will introduce yourself? Vaishnavi, yes, start. Just give a quick round of introduction. Just your name, where are you from, and whether you're working or you're experienced or you're fresher looking for a job, any. Okay? So let's start with Vaishnavi. Yeah, hi, I'm Vaishnavi Gogove. I'm Mhm. from IT background. I'm working in an IT department as an HR. Okay. Okay. I have a experience. I have prior experience of software development, then I switched to an HR. I'm still working in this. Okay, great. Yes. Next, Manisha. Just a moment, I will start. Yeah. Okay. Good evening, everyone. This is Manisha Viteko. Actually, my background is from IT only. I have passed out in 2013. Now I'm working as a teacher, but I have an interest in IT, so that I have joined this data science. Okay, great. So I got to know from Ashish sir that you have already completed your Python programming language. That means you are now able to do a basic Python programming. Am I right? No, Yes, ma'am, we ma'am. have not done. Batch 36. Hmm? Batch 36. Manisha Vitek, I'm in batch 36 now. So I have not done Python. Okay, but I came to know from Ashish sir that most of the all students are like they know the Python, basic Python. We are not expecting from you that you must have like advanced programming skill Python या आपको बहुत बड़े application build करना है. Just data structure क्या होते हैं, loops क्या है, functions क्या है, ये यही Python है. हमें सिर्फ इतना सीखना है जितना हमें शोकेस करना है. अभी उसको एडवांस लेवल पे कब लेके जाना है, जब हम जॉब करेंगे तब हम लेके जाएंगे. बट अभी हमें एंटर करना है उस वर्ल्ड में, डेवलपमेंट में, जॉब में, कंपनी में एंटर करने के लिए जितना जरूरी है उतना पाइथन आपको आना जरूरी है. सिर्फ आपको डेटा स्ट्रक्चर, इफ एल्स और आपकी लूप्स और फंक्शन, ये तीन चार ही ऐसे पार्ट है मेजर फंडामेंटल जिसको बोलते हैं. अगर उतने भी आपको आ गए देन मोर देन इनफ है. ठीक है, तो ये आपको आता है, ऐसे मैं पकड़ के चल रही हूँ अभी के लिए. जिन लोगों को लाइक ज्यादा नॉलेज नहीं है पाइथन रिगार्डिंग या फिर सिंटैक्स वगैरह पता नहीं, सो यू स्टार्ट योर स्टडी फॉर पाइथन. ओके, जैसे हम अभी करेंगे, हमने किया है तो हम भी डेली प्रैक्टिस करेंगे. बट एक होता है ना कि एक डीप लेवल पे जाके लॉजिक बिल्ड करना, खुद से लिखना, वो सारी चीजें थोड़ा आपको खुद से पुशअप करना पड़ेगा. बिकॉज वी आर हैविंग ओनली 1 आवर फॉर दिस सेशन डेली. सो उस 1 घंटे में हम कितना कवर करेंगे, राइट? इसलिए आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालो, मैं अपनी तरफ से डालती हूँ. सो उसका आउटपुट हमें अच्छा मिलेगा. ओके, तो बेसिकली हमारे पास डेटा साइंस का जो मैंने प्लान बनाया, मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाती हूँ. Yes, हेलो, ma'am. ओके, गुड. तो ये मैंने एकदम सिंपल तरीके से हाई लेवल पे आपको प्लान दिखा रही हूँ, सो दैट आपको भी एक आइडिया रहे कि हम ये सीखने वाले हैं. नॉट इन वेरी डिटेल, हमें ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक एल्गोरिथम बनाना है स्क्रैच से, नो. बट हमें इस तरह से सीखना है हर एक टॉपिक को. यहाँ पर इतने पॉइंट्स है, हर एक टॉपिक को हमें इस तरह से सीखना है कि हम कुछ तो भी उसे डिलीवरेबल सबमिट कर सके, हम शो कर सके. लाइक आपने एक प्रोजेक्ट बनाया डेटा साइंस का, छोटा सा क्यों ना हो, एकदम छोटा, सबसे बेसिक, आपने एंड टू एंड किया उसको, वही उसको कहीं तो भी डिप्लॉय किया लोकली एंड गिटहब पे डाल दिया, एंड अल्टीमेटली आपके रिज्यूम पे डाल दिया, लिंक्डइन पे डाल दिया. सो ये हमें करना है. ठीक है, तो वो कोड क्या रहेगा वो हम देखेंगे. मैं डायरेक्टली कोड के लिए नहीं बोल रही आपको, बट एक ओवरऑल फ्लो समझा रही हूँ कि हमें क्या करने वाले. तो फर्स्ट वीक में हम देखेंगे मशीन लर्निंग के फाउंडेशंस की.
बेसिक डेटा साइंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मे बी आपने जब इसके बारे में रिसर्च किया होगा पाइथन मशीन लर्निंग डेटा साइंस के, तो आपने एमएल के बारे में भी पढ़ा है। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज रीएनफोर्समेंट लर्निंग है, या फिर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस क्या है, ईडीए जिसको बोलते हैं हम, ये प्री प्रोसेसिंग क्या होती है, यूजिंग विच लाइब्रेरी वी आर लाइक परफॉर्मिंग दिस प्री प्रोसेसिंग। तो ये सारी चीजें। देन एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे जिसका नाम होगा टाइटैनिक सर्वाइवल प्रेडिक्शन। नॉट नेसेसरी दिस, बट ये सबसे फेमस, सबसे इजी एंड शोकेसेबल है टाइटैनिक सर्वाइवल प्रेडिक्शन। तो इसको हम ट्राई करेंगे एंड ये हम डिलीवर करेंगे प्रोजेक्ट। तो उसके लिए हमें ये हाई लेवल पे ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए, छोटा सा ही प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट इन द सेंस एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है ये, जिसमें हमें क्लासिफिकेशन करना है। यू नो वेरी वेल टाइटैनिक का जो एक्सीडेंट हुआ था शिप का, ठीक है, तो उसमें कितने पीपल सर्वाइव किए, कितने डेथ हो गई लोगों की, तो उसका क्लासिफिकेशन हमें करना है। अभी वो डेटा में क्या होता है कि एक CSV फाइल है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, मतलब एक्सेल फाइल। उसमें पर्सन के नेम है, उनकी एज है, उनका जेंडर है, उनके साथ सिबलिंग्स थे, स्पाउस थे, उनका टिकट नंबर क्या था, टिकट की प्राइस क्या थी, कौन से कैबिन में बैठे थे, ये सारी डिटेल्स हैं। एंड लास्ट कॉलम में क्या है, सर्वाइव्ड और नॉट सर्वाइव्ड। तो इस तरह के फॉर्मेट में वो डेटा रहेगा, वो कैगल से हम डाउनलोड करके हमारे प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। तो उस तरह के छोटा सा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, ये हम देखेंगे फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक में हम वही मशीन लर्निंग को कंटिन्यू करेंगे, जो हमारी सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जिसकी लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, के नियरेस्ट नेबर है, डिसीजन ट्री है। इसे बहुत सारे इन द सेंस हार्डली 10 to 15 एल्गोरिदम से अगर आप कितना भी मतलब डीपली फाइंड आउट करो तो उसमें के कुछ इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स हमें देखने हैं। एंड वी आर इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ दैट एल्गोरिदम। जब हमने कोई एक मॉडल ट्रेन किया एमएल का, तो उसकी एक्यूरेसी हमें चेक करनी होती है। तो वो देखेंगे कैसे करके हमारा मॉडल कैसे काम कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है। कुछ तो भी मेजर चाहिए ना, जैसे कि अगर हम कुछ प्रिपेयर करते हैं एंड हमारे टीचर्स को, ट्रेनर्स को वो शोकेस कर दे, तो वी आर डिसाइडिंग, वी आर इवेलुएटिंग योर परफॉर्मेंस कि आपको डेटा साइंस का कितना नॉलेज है, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, कितना आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड हो। तो वैसे ही एमएल मॉडल को इवेलुएट करने के लिए हमारे पास कुछ मेट्रिक्स है, तो जैसे कि F1 स्कोर, AOC, ROC है। देन L1 L2 रेगुलराइजेशन, मतलब कोई एमएल का मॉडल है, तो उसको उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए रेगुलराइजेशन टेक्निक। ऑब्वियसली रियल टाइम डेटा के ऊपर जब हम काम करते हैं तो उसमें डेटा बहुत मेसी होता है, तो उसको हमें क्लीन करना पड़ता है प्रॉपरली। तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक है, वो सारी टेक्निक यहाँ पर आ जाती है प्री प्रोसेसिंग एंड ईडीए में, ठीक है। तो ये करने के बाद मॉडल ट्रेन होगा, उसको इवेलुएट करेंगे। तो होपफुली हम जब ये सारे एल्गोरिदम्स कवर करेंगे तो ये हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। देन उसके बाद एडवांस्ड एमएल में क्या करेंगे हम, जो हमने मॉडल ट्रेन किया उसका परफॉर्मेंस और इंक्रीज करने के लिए कुछ स्पेशल एल्गोरिदम्स है, जैसे कि बैगिंग है, बूस्टिंग है, फीचर इंजीनियरिंग करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें क्यों करना है, तो एल्गोरिदम जो हम बना रहे हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं हमारे मॉडल को हमारे डेटा के ऊपर, उसका वो अच्छे से काम कर सके, इसके लिए उसको ट्रेन कर रहे हैं। तो उसके टेक्निक्स देखेंगे हम थर्ड वीक में, ठीक है। ये भी वीक में हम एक अभी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन है, यहाँ पर हाउस प्राइस और लोन प्रेडिक्शन है, यहाँ पर टाइटैनिक सर्वाइवल प्रेडिक्शन है। एक बार आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फाइल को कॉन्फ़िगर करना, उसको प्रोसेस करना, बट एक बार आपने 1-2 वीक इसमें डाल दिए तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा, तो स्पीड आप ले लोगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक में हम देखने वाले हैं, ये सुपरवाइज हो गए, यहाँ तक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। एंड यहाँ पर है अनसुपरवाइज। अनसुपरवाइज मतलब दिस इज अ सेकेंड टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, जिसमें अनलेबल डेटा होता है हमारे पास, ठीक है। तो उसके भी कुछ एल्गोरिथम, जैसे यहाँ पर ये है लीनियर लॉजिस्टिक केयर एंड डिसीजन ट्री, वैसे यहाँ पर PCA है, के मीन्स है, DB स्कैन, ये टाइप एल्गोरिथम्स के नेम है, ये क्लस्टरिंग के लिए यूज करते हैं। अगेन वी आर हैविंग वन प्रोजेक्ट हियर, दिस प्रोजेक्ट्स कैन वेरी। मैंने अभी के लिए सिलेबस सबमिट करने के लिए मैंने एग्जांपल्स डाले, जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन है या फिर फ्रॉड डिटेक्शन है, बट एज पर योर अंडरस्टैंडिंग एंड एज पर द नीड रिक्वायरमेंट हम ये प्रोजेक्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन
आपका ये अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग होने के बाद आपका ऑलमोस्ट आई थिंक हाँ 4 वीक हो जाएगा। सो वहाँ पर मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चंस दूंगी फॉर इंटरव्यू, जैसे कि मशीन लर्निंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग क्या है, सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज में डिफरेंसेस क्या है, ये सारी चीजें, ऐसे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अलोंग विद द आंसर एक पीडीएफ में दूंगी मैं, या फिर हम डिस्कस करेंगे। पहले आप मैं आपको पीडीएफ देती हूँ, आप उसको रीड करो थरोली। बिकॉज क्या होता है, वी गॉट 1 आवर, तो उसमें कंसेप्ट एक्सप्लेन करो, कोड करके लेना है आपसे, प्लस इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना, ये सारी चीजें कवर करना इट्स नॉट पॉसिबल। सो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, और ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे वहां पर जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं कि हमें कितने भी दिन सिलेबस चलाते रखना है एंड हमारा सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा है, हम कंसेप्ट डाइजेस्ट ही नहीं हो रहे, ऐसे नहीं करना है हमें बिल्कुल भी। शॉर्ट एंड इंटरव्यू रेडी, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस के लिए निकाल के रखे हैं, एंड उसमें कुछ एडिशनल आपको एडिशनल करके मैं आपको दे दूंगी, ठीक है, आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें 5th वीक से मशीन लर्निंग के बाद एक्चुअली डीप लर्निंग लेना है, बट यहाँ पर मैंने जेन एआई डाला है। सो यहाँ पर एक वीक में आपको डीप लर्निंग सिखाने वाली हूँ। अभी मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग आता है। तो डीप लर्निंग मतलब क्या है कि जिस ऑलरेडी ये तीनों भी एआई के पार्ट है, मतलब एआई का ही काम करते हैं ये। जहाँ पर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स काम करना स्टॉप करते हैं, मतलब उनका परफॉर्मेंस क्या होता है, स्टेडी रहता है एज पर द डेटा इंक्रीजेस, वहां पर उसका जो एक्यूरेसी है, परफॉर्मेंस वो इंक्रीज होना चाहिए, राइट। जिससे आपका रियल टाइम डेटा बढ़ने लगा तो परफॉर्मेंस भी बढ़ना चाहिए। एग्री? यस और नो? Yes. बट क्या होता है, मशीन लर्निंग में परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होता है जब डेटा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मिलियंस ऑफ रोज आ जाते हैं। सो एट दैट टाइम डीप लर्निंग कम्स इनटू पिक्चर। तो उसके भी बहुत सारे पैटर्न्स है, न्यूरल नेटवर्क होता है, नोड्स, प्रोपगेशन वगैरह। तो एक वीक के लिए पूरा हम डीप लर्निंग लेने वाले हैं। डीप लर्निंग के बाद जाके हम जेन या एलएलएम इंट्रोडक्शन, उसमें ट्रांसफॉर्मर्स क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, ओपन एआई की मॉडल, लैंगचेन के एपीआई क्या है, छोटा सा हम चैटबॉट बना के देखेंगे। जब तक आप बनाओगे नहीं ये, तब तक आपको नहीं समझेगा, ठीक है। देन जन्य एप्लीकेशंस बनाने के लिए हमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है। जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन द सेंस, जो मैं भी बात कर रही हूँ आपसे, या फिर आप मुझसे कुछ रिटर्न में देते हो, तो एक लैंग्वेज है, दिस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। सो वो टेक्स्ट को समझना है, समझाना है मशीन को, कि जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि दिस इज अ एप्लीकेशन ऑफ जेन, नाउ ये सेंटेंस मशीन में स्टोर करना है, उसके ऊपर हमें प्रोसेस करना है, तो वो वेक्टर में कन्वर्ट होगा, न्यूमेरिक में कन्वर्ट होगा, एंड ऑन दैट बेसिस हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये कुछ जेनेआई के एप्लीकेशन से ये चलेंगे हमारे 2 वीक्स। उसके बाद एमएल सिस्टम डिजाइन मैंने ये एकदम बफर रखा है, इसमें हम एंड टू एंड मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करेंगे एंड उसको डिप्लॉय करेंगे स्ट्रीमलेट का यूज करके, ठीक है। स्ट्रीमलेट मतलब छोटा सा एक लोकली डिप्लॉय करने का एक छोटा सा एक फ्रेमवर्क है। जैसे हमारे आपने सुना होगा जैंगो होता है, फ्लास्क होता है, वैसे स्ट्रीमलेट एक इजी टू यूज एंड इट्स गुड फॉर फ्रेशर, कि आपको लोकली डिप्लॉय करने के लिए वो स्ट्रीमलेट यूज किया जाता है। एमएल सिस्टम डिजाइन कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। इसमें आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो ये वीक में हम, मतलब हर वीक में क्लियर करेंगे, बट मोस्टली मैंने इसको सिर्फ प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट डाल के रखे हैं, बिकॉज इज अ बफर वीक। आपके 1-1.5 महीने में जो भी डाउट्स रहेंगे वो सारे हम क्लियर करेंगे। फाइनली आपके पास जब हम हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस जितना हमने डिजाइन किया है उतना हो जाएगा, तो आपका रेज्यूम रेडी रहेगा, लिंक्डइन का आपका जो भी प्रोफाइल है वो एकदम सेट होगा। ऐसा प्रोफाइल बनाएंगे हम कि अगर आप वहां पर ओपन टू वर्क डालते हो लिंक्डइन पे, तो जो रिक्रूटर से दे में भी कॉन्टेक्ट यू, ठीक है। तो लिंक्डइन का ऑप्टिमाइज फाइनलाइज वर्जन आपका होगा, इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, प्लस आंसर प्लस उनके, सॉरी क्वेश्चन प्लस उनके आंसर भी। एंड अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपको रीडिंग करने से नहीं लग रहा है, सो वी कैन हैव अ डिस्कशन, सेपरेट डिस्कशन फॉर एवरी क्वेश्चन। बिकॉज इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि व्हाट इज पाइथन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, हाउ लिस्ट इज डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट देन द टपल, कौन सा फास्टर है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको और ज्यादा सिखाऊंगी।
ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हम जितने भी नोट्स डालेंगे, थेरोटिकल पार्ट डालेंगे, उतना टाइम हमारा एक्सप्लेन करने में जाएगा। तो मेन टॉपिक एंड उसके क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर, सो ऑलमोस्ट आपका वो कवर हो जाएगा हर तरीके से। ओके, सो यहाँ पर हम एक चैटबॉट बनाएंगे फाइनली, एंड उसके पहले हम जैसे कि मशीन लर्निंग के मॉडल ट्रेन करेंगे, क्लासिफिकेशन के, रिग्रेशन के। सो दिस इज द ओवरऑल फ्लो ऑफ आवर 2 months roadmap. Okay, any questions, guys? हम्म, बहुत फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है? एनी सजेशंस? आपको इंटरेक्टिव रहना है, गाइस। Ma'am, हम्म, Rishikesh this side. यस, बोलो। Actually, I wanted to ask if we get time, can we have SVM also? SVN, SVM, that यस, support राइट। vector मैंने machine. मैं आपको क्या बोल रही हूँ यहाँ पर, मैंने जस्ट एग्जांपल डाले, नॉट नेसेसरी कि लीनियर एंड लॉजिस्टिक है तो इतना ही होगा। अगर मैं इसको जब आपको पढ़ाऊंगी एट द टाइम आई कैन ऐड रैंडम फॉरेस्ट एज वेल, जो मुझे नेसेसरी लगता है आपके लिए, तो वो सारे एल्गोरिथम्स हम कवर करेंगे। Yeah, ma'am. बिकॉज Okay. ये हमें बढ़ा के आपको दिखाना, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। लंबा Yes. चौड़ा सिलेबस हमने किया है, आपसे करवा के लेंगे, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है, आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना आप बोल पा रहे हो। तो आपको शुरू से, आज के सेशन से आपको बात करना है, बिकॉज वी आर हैविंग लिमिटेड टाइम, वी आर नॉट हैविंग कंप्लीट 1 year टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स। तो आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं फटाफट फटाफट क्लियर करो। कोई कंसेप्ट नहीं समझ रहे तो उसको रिपीट करने को बोलो, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर देने के लिए बोलो, प्रैक्टिकल करके आप भी 80% उसमें टाइम डालो। आई नो एवरी वन इज वर्किंग, आई एम ऑल्सो वर्किंग, सो आपको भी टाइम डालना है उसमें, उस एफर्ट डालना है। और मैं भी सिखाऊंगी, तभी जाके ये अच्छे से आउटपुट मिलेगा हमें, नहीं तो हम 2 महीने ऐसे निकल जाएंगे, बाद में क्या है। सो ये नहीं करना है हमें बिल्कुल भी। ओके, सो इसमें कुछ, किसी को कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है? हम मैं ये बोल रही थी कि मेरा एक्चुअली पाइथन कुछ हुआ ही नहीं है। मैं फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं कि एक्चुअली पाइथन होता क्या है। ओके, इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हम जैसे जावा होती, जैसे C++ है, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नथिंग एल्स। एंड एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस इट्स वेरी इजी टू लर्न। सिंटैक्स एकदम इजी होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप फटाक से उसको स्टार्ट करो। मैंने ये नहीं किया ऐसा, वेट मत करो, आप फटाक से उसके वीडियो देखो, जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको स्टार्ट करो। डेटा स्ट्रक्चर, कंट्रोल, फॉर लूप्स एंड फंक्शन, ये चार ही चीजों, ये चार भी टॉपिक्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, बट एज यू सेड ना, मतलब अगर ये आप कंटिन्यू करोगे, जो AI एंड ML जो सेशन स्टार्ट हुआ है, उसके लिए एटलीस्ट आपका बेसिक पाइथन तो क्लियर होना हाँ, चाहिए। तो वो अभी पढ़ाते टाइम क्लियर हो जाएगा ना, तो ओके आपको मैम। अभी स्पीड अप करना है खुद से। ओके ओके। ठीक है, द आइडिया इज, ये हमें अगर जल्दी से सब कुछ रेडी रखना है, सो आपको भी उतना ही एफर्ट डालना पड़ेगा। जस्ट डोंट डिपेंड ऑन थरोली ऑन दी द कंटेंट डिलीवर्ड बाय मी। ठीक है, ओके मैम। ओके, सो मैम, और मुझे एक क्वेश्चन था यस, कि ये कोर्स के लिए अपना सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा और क्या-क्या टूल लगेगा? व्हाट आर द टूल्स रिक्वायर्ड? ओके, आई हर्ड यू लाइक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड टूल्स, राइट? यस, करेक्ट। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, अभी हम कोई फाइन ट्यूनिंग या फिर कोई बड़ा मॉडल ट्रेन नहीं कर रहे, सो बेसिक लैपटॉप इट्स सफिशिएंट। अभी आपका 16 GB रैम है या फिर 8 GB रैम है तो भी फाइन है। ठीक है, एंड अगर आपको कोई हेवी मॉडल ट्रेन करना है आगे जाके डीप लर्निंग का, सो यू कैन इजीली स्विच टू द गूगल कोलैब, वहाँ पर वो फ्री GPU प्रोवाइड करते हैं, सो सिस्टम का कुछ टेंशन नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट टूल्स, you can install Anaconda, so you can use a Jupyter notebook. Basically I use Jupyter notebook to teach the students for the beginner. So Jupyter notebook सबके पास है? है सबके पास Jupyter notebook? राइट। No, ma'am. उसको इंस्टॉल करो, जस्ट टेक अ लुक ऑन एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन और एनाकोंडा और मिनीकोंडा, एक वीडियो देखो यूट्यूब पे। एंड जुपिटर नोटबुक जैसे ऐसी होती है, जो मैं अगर आपको दिखाऊं, आपका पूरा इंस्टॉलेशन होने के बाद ये ऐसे दिखेगी जुपिटर नोटबुक। इट्स सिंपली एडिटर, नथिंग एल्स। आपको कोड रन करना है ना, कहीं तो भी जो भी आप कोड अभी करोगे ना उसको रन करना है, तो उसके लिए एक एडिटर है, जैसे हमारा विजुअल स्टूडियो होता है ना, वैसे नोटपैड जैसे होता है, वैसे एक एडिटर है वो। So can we use ideally as a substitute
Yeah, you can use, but it's very basic, as simple as a notepad. Okay, so इसीलिए हमें ideally use नहीं करना है. Oh, इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है वो. वहां पर हम ज्यादा कुछ मॉडिफिकेशन कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते. सो इट दिस जुपिटर नोटबुक प्रोवाइड्स यू द गुड यूजर इंटरफेस. जैसे आप यहाँ पर फोल्डर बना सकते हो, ये प्रॉपरली विजिबल है. यहाँ पर आप न्यू टर्मिनल वगैरह, फाइल, नोटबुक अपलोड करना, ये सब कुछ कर सकते हो. तो इट्स अ बेटर टू हैव अ जुपिटर नोटबुक. okay.